so that no matter what the topic is, the message, of course, is always the same. The message is the sadhana of stepping out of this limited body, this limited mind, and operating from who we really are. और उसके लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए. जो भी हम सीखे उसको ना सीखा करने की ट्रेनिंग चाहिए. It's an unlearning process. It's not learning. We have to unlearn everything that we have learned about ourselves. So knowing and operating as if knowing that we are not, I am not this body, I have a body, I operate the body, I use the body as a vehicle to communicate, to understand, to appreciate, but that I am not this body. So everything is just happening. The body and the mind are not really doing anything, even though we are convinced because of years of training, we are convinced that the mind and body is doing something. And हम जीते हैं वैसे जैसे ये शरीर और मन कुछ ना कुछ कर रहा है. तो ये हमें अनलर्न करना है. तो beginning with understanding that I have a body, I have a mind. And जैसे हमने कई बार प्रयोग किया है कि जब ही एक याद करिए एक पल जिसमें आप नाच रहे थे, तो अपने आप से पूछिए कि क्या शरीर अपने आप नाच रहा था क्या? Then you know that शरीर अपने आप नहीं नाच रहा था. हम जो है, मैं जो हूं, वो शरीर को नचा रहा था. जैसे एक कठपुतली नाचती है, लेकिन नचाने वाला कोई और है जो उसको चला रहा है. तो हम जो है वो जो चलाने वाले हैं, उसको हमें देखना है, समझना है, और वो जो है वही बनकर हमें जीना है. So one of the ways I have just learned recently from another source. Ultimately there is only one source, but through another medium I've learned कि that the practical things in life जो हम जीते हैं, जो चल रहा है जीवन में उसी को लेकर हमें जो भी सीखना है वो उसी से सीखना है. Because that is the best teacher for us. The best university is life itself. The best teacher is life itself. So I just want to go to each person one by one, and I want to know what is happening, what is happening in your life. So whoever wants to go, I want to have a one-on-one conversation with each one of you today, whatever time it takes, 5 minutes, 10 minutes. And so who would like to go first to share what is going on in their life? क्या चल रहा है? Life में क्या चल रहा है? Who wants to go? Okay, पुरुषोत्तम जी, चलिए. Especially what are the challenges in life right now? What are your current challenges? क्योंकि there is only one way is up. Up is the only way. If you're not going up, you're going down. That's the way the universe works. तो ऊपर की ओर चढ़ने में, ऊपर की ओर जाने में हमेशा challenges तो आनी ही है life में. तो the way, so what is that way up that you are walking, and what are the challenges? अभी तो मतलब this phase of my life is
बहुत ही स्मूथ जो सब अच्छे से चल रहा है। तो कोई चैलेंज मैं फेस कर रहा हूँ तो इट इज ऑन फिजिकल लेवल। Okay. हाँ. आई So हैव let's बैक talk about एक, that. आई हैव बैक एक। कभी लगता है ठीक हो रहा है, कभी लगता है तो वही मतलब रोलर कोस्टर जैसे चल रहा है, अप डाउन अप डाउन। Hmm. समटाइम्स मतलब जब मैं, और वो एक मेरे लिए एक चैलेंज के साथ साथ एक एवेन्यू भी हो गया है। मैं जब अपने आप के साथ होता हूँ और पूरा इसमें होता हूँ तो वो प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है। लेकिन जब कहीं थोड़ा सा इधर उधर माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ तो वो मतलब वो पेन के साथ रहता हूँ मैं। Hmm. अदरवाइज व्हेन आई एम विथ माई सेल्फ तब तक पेन के साथ नहीं रहता। तो ये एक तब से. मतलब मैं अपने आप के साथ हूँ, मेडिटेटिव स्टेट में हूँ या फिर ऐसे Correct. ही स्टेट Correct. में हूँ, तो मुझे नहीं पेन महसूस होता हो। लेकिन जब Right. बाहर निकलता हूँ कोई काम के लिए और फिर छोटे मोटी चीजें चलती रहती तो उस समय मुझे वो पेन का एहसास होता है। करेक्ट करेक्ट. तो एक तो हम ये पहले वोकेबलरी थोड़ा सा हम अपने आप को ट्रेन करते हैं. तो व्हेन आई से आई हैव अ बैक एक, तो ये दिस इज ओनली पार्शली ट्रू. इट इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू. द आई दैट यू आर डज नॉट हैव अ बैक एक. द आई दैट यू आर does does not have a, the body experiences a backache. So rather than saying I have a backache, हम बोल सकते हैं अपने आप को कि मुझे हो तो रहा हेल्थ है. है इट कि इज अ बैकएक इज हैपनिंग. अ बैकएक इज हैपनिंग. उसको उतना पर्सनल लेने का जरूरत नहीं है कि मुझे बैकएक हो रहा है. ये बैकएक इज हैपनिंग. अ बैकएक इज हैपनिंग, दैट्स ऑल. एंड वंस यू डू दैट, immediately you, the experiencer, the creator, becomes present, and the backache no longer rules over you, and and you are free from that backache. A backache is happening. अभी जो करना है उसके बारे में वो कर सकते हैं. आराम ले लो, कंप्रेशन या दवाई या मसाज या थेरेपी या फिजियोथेरेपी या जो भी करना है, योगा करना है, जो भी करना है हम कर सकते हैं. बट द मिनट वी से आई हैव अ बैक एक, हम अपना जो पावर है वो कहीं और दे देते हैं जहां उसका उसकी जगह नहीं है. वी हैंड ओवर पावर वेर इट डजंट बिलोंग. सो सो पार्ट ऑफ दिस अनलर्निंग प्रोसेस दैट हम सीख सकते हैं कि ये हो रहा है, बस ये हो रहा है, हो रहा है. जैसे बहुत कुछ हो रहा है. बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, ठंड लग रही है, ठंड हो रही है. अम, उसके साथ साथ एक और एक है, बैक एक हो रहा है. नाउ इट डजंट हैव अ grip on you anymore because you are operating. The I is only the big I. Now it is time to, for us who have been in this journey for quite some time now, कोई यहाँ पर नया नहीं है. So it is time to now really start living as the I that you really are, and to not even use the vocabulary of I when it doesn't actually belong. So, um, so for example, I am afraid would be again an incorrect statement. Supposing you have some fear going on, I am afraid. ये गलत स्टेटमेंट होगा हमारी नई वोकेबलरी में. आई एम अफ्रेड नहीं. देर इज अ फियर. देर इज अ फियर. नाउ व्हेन देर इज अ फियर, तो वो एक छोटा सा बॉल है आपके गोद में जिसको आप कभी भी चाहे छोड़ सकते हैं. बट जब आप कहते हैं कि आई एम अफ्रेड और आई एम डिप्रेस्ड और आई एम अपसेट, तो वो जैसे आपने पूरा का पूरा पहन लिया, अपने आप को उसमें निचोड़ दिया, उसमें उसमें आप मिल गए.
और आपने आपका पावर रेलिंक्विश कर दिया। तो ऐसे ही वोकेबलरी हम चेंज करते जाते हैं अभी, कि ये हो रहा है, बस बैक एक हो रहा है, डर हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, जो भी है, वी आर नॉट डिनाइंग कि जो भी है वो है, इट्स नॉट दैट इट इज नॉट देयर, बट हु इज, व्हाट इज द रियल, द ओनरशिप is not that I am everything and nothing, right? Great. तो तो आपके लिए एक गीत इसी बात पर। थैंक यू। Can you hear the music? आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां हम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां हम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का सवेरा लाए, जहां रंग बिरंगी पंछी आशा का संदेशा लाए। कभी धूप मिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहां गम भी न हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। सो ये नया फॉर्मेट है, नया फॉर्मेट है, वन टू वन कॉन्वर्सेशन, one-to-one conversation, one-to-one interaction, even though we are many of us, one-to-one conversation. And of course, one-to-one जब conversation होता है, तो बाकी के जो लोग सुन रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ अपने आप के लिए भी मिलते ही जाता है। वैसा नहीं है कि मैं पुरुषोत्तम जी से बात कर रहा हूं तो उसमें गौरव के लिए कुछ कनेक्शन ही नहीं है। सबके साथ सबका कनेक्शन है, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ऑल वन। So one-to-one conversation and one-to-one song for each one. So that's the new format. Chalo, who's next? Who would like to go next? What's happening in life? क्या चल रहा है? What is the next step for you? What is the next challenge? What is आगे का रास्ता क्या नजर आ रहा है आपको? चलिए, कौन है? Mai already looks like. Go ahead. I say, हाँ sir. हाँ, Naina. चलो चलो, Naina, yes, go ahead. Yes. I am right now in the hospital which can be with my mother-in-law. She is having a spine operation. So Okay. wishing for her to get well soon.
ओके, ग्रेट ग्रेट। तो एक होती है परिस्थिति और दूसरी होती है आपकी स्थिति, राइट? अपनी स्थिति। तो एक तो परिस्थिति जो भी हो, आपकी स्थिति क्या है, उससे ना सिर्फ परिस्थिति पर प्रभाव पड़ता है, परिस्थिति में जादुई परिवर्तन भी हो जाता है। आपकी स्थिति क्या है? तो अगर ये परिस्थिति है चुनौती वाली कि हेल्थ का चैलेंज है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई जो आपके फैमिली में से कोई हॉस्पिटल में है, आपकी सास हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन है, तो सोचना और अपने आप को पूछना ये है कि मेरी स्थिति क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या अनुभव कर रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ। क्योंकि हमारे फीलिंग्स जो है वही हमारा एक कंपस है। हमारा शरीर और मन जो विचार करता है वो इंजन है, लेकिन किस दिशा में जाना है वो हमारे फीलिंग्स हमें बताते हैं। और अगर आप भी उसी हॉस्पिटल में बैठे हैं टेंशन को लेकर, डर को लेकर, तो अगर डर और टेंशन ये स्थिति है आपकी, डर और टेंशन, तो वही डर और टेंशन मैग्नीफाई होकर जीवन में वो स्थिति परिस्थिति में बदल जाती है। तो जो आप है, जो आपकी असलियत है, उसको ना टेंशन है ना डर है, क्योंकि जो आप है उसको ना तो शुरुआत है, ना तो जीवन है, ना मृत्यु है। तो जिसको ना जीवन है ना मृत्यु है, उसे डर का कोई सवाल ही नहीं है। डर का कोई सवाल नहीं है, टेंशन का कोई सवाल नहीं है। तो अगर डर है तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक पोशाक है, ये एक स्थिति है जो आपने ग्रहण की हुई है आपकी सोच से, आपके 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 कॉन्सेप्ट से। वरना और अगर ये पोशाक आपने पहन रखा है टेंशन का, डर का, तो वो पोशाक को बदलना आपके ही हाथ में है। क्योंकि पोशाक पहनने वाली जो ऊर्जा है वो आप है, आपकी असलियत जो है। सो जब आप उसी एनर्जी में रहेंगे, उसी सेंसेशन में, उसी स्पेस में, उसी जो माहौल है, आपकी स्थिति अगर ओकेनेस की है, ना कि टेंशन की। क्योंकि नॉर्मल है कि हॉस्पिटल में है, सर्जरी है, और मन कहता है ना कि ये स्पाइनल कॉर्ड की, बाप रे, स्पाइनल कॉर्ड यानी ये तो बहुत ही डेंजरस है, ये है, वो सब कहानियां है जिसको लेकर हम कुछ ना कुछ अपने मन की स्थिति और भावना को का निर्माण करते हैं। लेकिन ये कनेक्शन को जोड़ना और तोड़ना आपके हाथ में है। तो जरूरी नहीं है कि हाँ, यस ऑफ कोर्स स्पाइनल सर्जरी इज कॉम्प्लिकेटेड, बट उससे टेंशन होना, उससे डर लगना, वो आपके हाथों में है। और आप उसे लविंगली, उसके भीतर क्या है, उसके पीछे क्या है। अगर आपको टेंशन है तो उसका मतलब है कि आपको जो व्यक्ति जिससे गुजर रही है उसके लिए प्रेम है, राइट? प्रेम नहीं होता तो डर भी नहीं होता। बहुत लोगों को बहुत कुछ होता है, आपको कुछ नहीं होता, उससे उससे डर नहीं लगता, कुछ नहीं होता, क्योंकि उनका साथ आपका कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली हर एक के साथ अपना कनेक्शन है, लेकिन खास तौर से जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके साथ कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन है तो डर है, और ये कनेक्शन है तो प्रेम है। तो तो कनेक्शन की एक तरफ है डर, कनेक्शन की दूसरी तरफ है प्रेम। तो हमारे हाथ में है कि हम प्रेम की ओर जाए या डर की ओर जाए। और अगर हम प्रेम की ओर जाएंगे, मस्ती की ओर जाएंगे, आनंद की ओर जाएंगे, तो वही आनंद हमें वो स्थिति परिस्थिति में बदल जाएगा। और वही आनंद और परिस्थिति के माहौल, आनंद की परिस्थिति में जो भी होना है आगे इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन, या वापस आएंगे आप, या जो भी वही उसी से होगा। तो
So one song for you. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, लगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। हाँ, धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पर मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Great, sir. सो ये शब्दों बहुत बहुत ही अमेजिंग है कि रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। हमें भी वैसे ही जीना है। जब भी मन रूठ जाता है, ब्रिंग दैट आई एम, उसको आगे लाइए, सामने लाइए, फुसलाने के लिए। ताकि वो रोना हंसी में बदल जाए, वो डिप्रेशन खुशी में बदल जाए, वो पेन जॉय में बदल जाए, वो टेंशन लव में बदल जाए। वो ही जादू है आपके अंदर, क्योंकि आप वो है हु इज द क्रिएटर ऑफ ऑल दैट देयर इज।
तो आपके हाथ में है क्या क्रिएट करना है आपको। तो जब भी रूठ जाते हैं हम, वो फुसलाने वाले को बुला लीजिए और अपने आप को फुसलाकर बहलाकर हंसी तक पहुंच जाइए, खुशी तक पहुंच जाइए, आनंद तक पहुंच जाइए। वंडरफुल, ग्रेट। हर एक बार जब ये गीत मैं गाता हूं ना, तो किसी ना किसी पंक्ति से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल ही जाता है। क्योंकि आज तक ये अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी वो जो पंक्तियां उस पर हमारा ध्यान था, तो उसमें भी बहुत कुछ है कि यू नो दैट स्पेस बिटवीन टीयर्स एंड लाफ्टर, द स्पेस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर वर्ल्ड, जो बीच में है, द इंटरफेस, खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा, दोनों है। इक्वानिमिटी, only when you're in equanimity both are available. समाधि में है जब, तभी दोनों है, वरना आपको कोई चॉइस ही नहीं है। या तो रो लेते हैं परिस्थितियों को लेकर, या फिर हंस लेते हैं परिस्थितियों को लेकर। लेकिन जब आप समाधि में है, परिस्थितियां चाहे जो भी हो, रोना या हंसना आपके हाथ में है। So that is the message of this song. Beautiful. Okay, maybe we have time for one more one-on-one. Who would like to share what is going on? So question we are asking everyone is what is going on in your life? और उसी को लेकर हम समझना चाहते हैं, जो भी हम बातें कर रहे हैं अपने आप के बारे में, जो हमारी असलियत है उसके बारे में। So maybe Hina, you are here. Good, welcome. Deepak, Vandana जी। थैंक यू सर। हाँ, वंडरफुल। चलिए बताइए क्या चल रहा है लाइफ में। What are the challenges? What is the challenge in your life? हाँ जी, yeah, go ahead Hina. Or Deepak, you want to ask? Okay, Hina, go ahead. सर मैंने मतलब आज का सेशन बहुत दिन बाद ज्वाइन किया, हाँ, no problem. और एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट मेरी सिचुएशन से रिलेटेड ही टॉपिक पे ही आप बात कर रहे थे, Correct. रिगार्डिंग फियर। हाँ हाँ, एंड आई वुड से कि आई एम अंडरगोइंग लॉट ऑफ fear somewhere somehow, which is not a real me, because that is not me, I know that, but somehow I am not able to take it away from me, take it Correct. out of me. वो मैं उसको हटा नहीं पा रही, मेरे को पता है ये मैं नहीं हूँ, this is not me, this was never me, but वो है, और एक जो fear है वो मेरे को पता है ये fear है, right. ये मुझे हमको हार्म कर रहा है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बट हम उसको किसी भी तरीके से हटा नहीं पा रहे। और एक मतलब वो फियर कंटिन्यूड है, कभी कोई कुछ कैसा बोल देता है, या कभी कुछ ऐसा हो जाता है, या कुछ ऐसा खुद फील हो जाता है, वो कंटिन्यूड है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट। तो ये देखिए, डर की कुछ, डर इज यूजफुल ऑल्सो। डर नहीं लगता तो हम एक सेफली एक सड़क भी क्रॉस नहीं कर पाते, राइट। हमें अगर बिल्कुल डर का कोई अनुभव, एहसास या कोई समझ ही नहीं होती अगर, तो हम सेफली एक रास्ता भी क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे ही निकल पड़ते और कोई कुछ ना कुछ हमारे शरीर को उड़ा देता था। तो डर का एक रोल है, डर इज एन इम्पॉर्टेंट इमोशन, दैट इज वाई इट एग्जिस्ट। जो भी है इस सृष्टि में कुछ ना कुछ उसका पर्पस है, उसे किसी ना किसी कारण से निर्माण किया गया है। लेकिन जब हम वही डर को लेकर उसे जरूरत से ज्यादा पावर दे देते हैं, तभी वही डर हमें हमारे जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी उसका इस्तेमाल हो जाता है, और हमारी एंड लाइफ बिकम्स miserable and sorrowful, rather than the joy and the fun and the game and the love and the beauty and the
and the happiness for which we have come to this earth. सही है ना? तो दो बातें हैं, दो रास्ते हैं इसमें से। एक तो ये है कि डर, कि या तो उस डर से आप फ्री हो जाओ बाय सीइंग, बाय ट्रांसेंडिंग, यानी उससे कहीं आप जो है वो डर आप नहीं है, यू आर नॉट अफ्रेड, देर इज अ फियर बट यू हैव अ फियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप बोलते हो कि आई एम अफ्रेड, we can modify that vocabulary, not even to say I have a fear, but just say there is a fear, there is a fear, उसका एक अस्तित्व है बस। क्योंकि जब when you say I have a fear, तो वो फियर को आप एक बहुत ऊंचा दर्जा दे देते हो, अपने आप से भी बड़ा। तो एक तो ये है कि आप समझ जाओ और कह दो अपने आप से कि आई हैव अ फियर, बिकॉज दैट इज द ट्रूथ। क्योंकि जैसे आपके पास गाड़ी है, आपके पास घर है, आपके पास कंप्यूटर है, फोन है, वैसे भी आपके पास एक चीज है जिसका नाम है फियर। लेकिन जैसे ही गाड़ी और फोन और घर आपको ओन नहीं करता, उसका आपके ऊपर कोई पावर नहीं है, वैसे ही फियर का भी आपके ऊपर पावर हट जाता है जब आप उसे उसी तरह देख लेते हो कि आई हैव अ फियर, और नॉट इवन आई हैव अ फियर, देयर इज अ फियर। बिकॉज इवन व्हेन यू से आई हैव अ कार, तो अभी कार को कुछ हो गया तो आप हिल जाते हो। व्हेन यू से दिस इज माई कार, और कार को कुछ हो गया, देन आप हिल जाते हो। इवन इफ यू से आई हैव अ कार, कार को कुछ हो गया, आप हिल जाते हो। बट अगर आप कहते, घूमते फिरते कहते कि देयर इज अ कार, ओके, एंड देन देयर इज अ some problem, there is an accident or there is a flat tire, it is just one of the things that happens. तो वो परिस्थिति और आपकी स्थिति घुल-मिल नहीं जाती, वो अलग रह जाती है। तो when we mix these two up is when the trouble starts. तो एक ये है कि आप उससे ऊपर उठ जाओ फियर से, by saying there is a fear, that's all, there is a fear. And there is a fear is also not a permanent statement, क्योंकि even if it is happening frequently, there is nothing in the world which is constant, there is nothing which is permanent. Even the fear is coming and going, is it true or no? आता है और जाता है। तो आते और जाते वाली चीजों में से है फियर भी। सो देयर इज नथिंग परमानेंट अबाउट दिस फियर। सो ना तो ये परमानेंट है, ना तो वो आप हो, इट इज जस्ट समथिंग दैट इज देयर। नाउ व्हेन समथिंग दैट इज देयर, it is your choice to keep it or to say goodbye to it. That choice is not there when it is owning you, when it is inside you. When you say I have a fear or I am afraid, it owns you, there is no choice. But when there is a fear, okay, isko goodbye kar do, and then there is fun, and then there is something else that you would rather have, which is laughter or anything. एक ये रास्ता है। तो ये आप देख लो, ये रास्ता अगर आप उस पे चल जाते हो तो वही सही है। अगर नहीं हो पाता है, then another way is to go into the fear. एक तो है आप फियर से ऊपर उठ जाओ, दूसरा है आप फियर के अंदर डूब जाओ, घुस जाओ उसके अंदर। We just go into the fear and see it for what it is. ये क्या है जो मुझे डरा रहा है? ऐसा होगा तो, ये होगा तो, वो होगा तो, वो होगा तो, ये प्रश्न को लेकर हम डर जाते हैं। अरे एक्सीडेंट हो गया तो, ऐसा हो गया तो। ये तो को आप एक पूर्णाहुति तक ले जाओ, यानी तो क्या होगा?
ओके, तो वो प्रश्न का आप जवाब अपने आप दे दो कि ऐसा हुआ तो क्या होगा? जो होगा वो होगा, और जो होगा उसके बाद जो होगा वो होगा, उससे लाइफ गोज ऑन. Every circumstance is more scary when you don't face it or acknowledge it. आप मान लो एक सपने में किसी भूत या किसी क्या कहते हैं मॉन्स्टर से डर के भाग रहे हो. वो मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़ा है, भागो 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 भागो, और आप भाग रहे हो, हाफ रहे हो, पसीना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और आप बिल्कुल डरे हुए हो, और क्योंकि आप उसको मुड़कर देखना ही नहीं चाहते. लेकिन जब आप मुड़कर देखते हो और रुक जाते हो, अच्छा भाई तू है क्या, कौन है तू जो मुझे इतना डरा रहा है? When you turn around and face that fear and go into that fear, तब जाके वो फियर का जो हवा है वो फुस हो जाती है. वो हवा ही निकल जाती है उससे सामने. अभी मुझे याद है, हम एक बार पहलगाम ट्रैक पे गए थे. मी एंड माय वाइफ, वी वर ट्रैकिंग थ्रू द हिल्स ऑफ कश्मीर, एंड बहुत ही सुनसान जगह थी. मतलब सुनसान यानी एज क्या पता नहीं सीजन का प्रॉब्लम था क्या था, हम दोनों ही थे सिर्फ. तो पहलगाम का रास्ता अकेले हम दोनों, और कई सालों पहले की बात है. और कुछ समय बाद हमने देखा कि एक बंदा है जो हमारे पीछे पीछे आ रहा है. तो एक छाता था उसके हाथ में और कुछ था, और वो बस हमारे साथ साथ चल रहा है. जैसे भी हम स्लो डाउन होते वो भी स्लो डाउन हो जाता था, जैसे हम फास्ट हो गए वो भी फास्ट हो जाता था, जब भी हम रुक गए वो भी रुक जाता था. एंड वी वर गोइंग डीपर एंड डीपर इनटू द जंगल, एंड वी वर स्टार्टिंग टू फील अ लिटिल बिट ऑफ फियर कि ये भाई अकेले हम, ये ना जाने जैसे अंधेरा होते जाएगा, पता नहीं क्या होगा, ये क्या कर लेगा. तो हमने ना एक जगह पे जहां हम पानी वानी पीने रुक गए, तो वो भी रुक गया और बैठ गया. तो मैंने जाके बस अपनी पानी की बोतल लेके उसको जाके दे दी कि भैया आप भी पानी पियो. तो हाँ कैसे हो, कहाँ जा रहे हैं, ऐसे बातें करने लगा मैं उससे. और जैसे बातें करने लगा, पानी दिया, तो जो भयानक रूप था उसका वो बिल्कुल ही पिघल गया. और उसने पानी पिया, बताया कि हाँ मैं ये गांव का हूँ, फलाना फलाना जा रहा हूँ, और वैसे, और हाँ ये रास्ता आगे ऐसा है, मैं ही आपको दिखाता हूँ. तो मैंने कहा आप ऐसा करिए, हमारे थोड़े से आगे चलिए ना, तो हम आपके पीछे पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल रास्ता तो हमें ठीक से पता नहीं. तो उससे दोस्ती हो गई, यारी हो गई. उसी जो एक भयानक रूप में हमें डरा रहा था, वही बात हमें बिल्कुल ही सिंपल, फ्रेंडली, लविंग में कन्वर्ट हो गई. क्यों? क्योंकि हमने मुड़कर देखा उसको कि भाई हो क्या तुम. तो हिना, ये जो डर है तुम्हारा, उसे एक बार फेस करके देख लो कि जो भी कह रहा है मन आपको कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा. अच्छा क्या होगा? अंत में तो क्या है? द अल्टीमेट फियर इज ओनली ऑफ डेथ, कि खत्म हो जाएगा सब कुछ, और खत्म होता है शरीर, खत्म होती है ये बुद्धि, खत्म होता है ये मन, लेकिन आप जो है उसको ना कोई शुरुआत है ना अंत है. तो आपको खत्म होना ही नहीं है, फिर खत्म होने का कौन सा डर? तो ये अल्टीमेट डर अगर आपने कन्फ्रंट करके देख लिया कि इवन इफ इट वाज ऑलवेज देयर, आई एम स्टिल ओके, then you can simply drop the fear and move on into other spaces of life, called laughter, called fun, called joy, called happiness. Yes, Hina? Yes, sir. Great. So Yes, here's a sir. question, I mean here's a song for you, and then we'll close for the day, I think, because we are so, क्या है ये Sanjeev song? ji, हाँ हाँ. I Yeah. just want to speak to Hina for a moment. हाँ, sure, go ahead. Yeah, Hina ji, जी.
जो सिचुएशन से आप गुजर रही हैं मैं उससे गुजर चुका हूं, और जैसे और मेरे साथ ये बहुत टाइम के लिए चला, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे संजीव जी ने कहा है, आप ये टेम्पररी है, और ये आपको अपने आप को याद दिलाना है बार बार कि ये टेम्पररी है, ये गुजर जाएगा। जी तो उससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, और ये आपकी इमेजिनेशन है। अगर ये रियल होता तो हम सबको वही डर होता। हम सबको नहीं है, सिर्फ आपको है, मतलब ये सिर्फ आपके माइंड में है, आपकी कल्पना है। तो ये दो बातें आपको याद दिलानी है अपने आप को कि ये निकल जाएगा। उसके लिए थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए, थोड़ी पेशेंस चाहिए, और ये आपकी इमेजिनेशन है। तो आपकी इमेजिनेशन को आप काबू में रखिए। बस मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ओके। Yeah, so just go into it. There is nothing to be afraid of except fear itself. There's a famous line like that. You have nothing to fear but fear itself. Ultimately, right? Or in so as long as you are moving around afraid of fear, it rules you. The minute you say fear is just an emotion, ultimately is just a thought, just a sensation. आज तक कोई ऐसा सोच नहीं है जिसने आपको कुछ भी कर सका हो। कोई विचार ऐसा नहीं जो आपको कुछ कर सकता है। It's only when you give power to the thought that the thought gets power. Thoughts by themselves have no power. So here's a song for you. ओरे पिया हाय, ओरे पिया, ओरे पिया हाय, ओरे पिया, ओरे पिया हाय, ओरे पिया। उड़ने लगा क्यों मन बावरा रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, और पिया और पिया। ताना बाना बुनती हवा है, बुनती हवा, बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ है, ले चल वहाँ जो मुल्क मेरा है,
वंडरफुल। तो यही है। तो इसमें भी जो एक पंक्ति थी जो मुझे थोड़ी छू गई कि ले चल वहां जो मुल्क मेरा है। व्हाट इज योर ओरिजिनल होम? जो मुल्क तुम्हारा है, विच इज योर ट्रू सेल्फ, जो आप असल में हो, वही तुम्हारा असली मुल्क है। इट इज नॉट द फिजिकल वर्ल्ड। चाहे अमेरिका में जी लो, चाहे दुबई में जी लो, चाहे इंडिया में जी लो, जहां भी जी लो, दैट इज नॉट what is important. What is important is what is your true place, what is your true home, and your true home is your true self. ले चल वहां जो मुल्क मेरा है, जालिम जमाना दुश्मन मेरा है। और जालिम जमाना और कोई नहीं है, वो खुद आप हो। जो आपने अपने आप को ये संकुचित छोटे से शरीर और मन में जकड़ लिया है अपने आप को, वही रोकता है आपको अपने असली मुल्क पर जाने से। और जब हम खुद की बेड़ियों को तोड़ देंगे, then nothing stops you from living as the true God of your universe. Living as the I that you really are. Nothing stops you. तो ले चल वहां जो मुल्क मेरा है। चलो हम सब चलते हैं वहां साथ, जो हमारा असली वतन है। So that is the invitation of Open Door. That is the promise of Open Door. That is the potential of Open Door. So thank you for walking with me on this journey towards अपना ही वतन, अपना ही घर, खुद का घर जो मैं हूं, जो असल में मैं हूं। वंडरफुल। थैंक यू। इसी के साथ थैंक यू संजीव जी, गुड इजाजत नाइट। लेते हैं। Thank you. Thank you, Thank Hina. you, Thank you, Sanjeev ji. everyone. Badruddin ji. So I Oh, want to do this one-on-one with everyone like this. Okay, every week we will do one-on-one conversation based on your own particular circumstances. उस परिस्थितियों को लेकर क्या स्थिति हमें निर्माण करनी है, वो हम देखते जाएंगे। And this is the same format for Monday's satsang. If any of you are coming, you can come. But this is that format there also. So welcome to that. Also on Monday, the SSY satsang. And then see you all on next Thursday. Thank you. Jai Guru. थैंक यू, Jai बाय। Gurudev. Thank you. Thank you. Bye Purvi. Bye Sana. Sana, you joined very late, but maybe next time you can join earlier and you can. Yes, Yeah. sir. Thank And you. Hina, do call Just if two you lines. want Two to lines I understand would more. like. Sorry, हाँ Sana बोलो. Sir, two lines if you could really sing because I really want to listen to you. Sir. Sure. क्या सुनोगे? चलो एक और गीत Sir, to end. sir, that To end. Krishna song. Krishna Oh, song. Krishna वाला. Oh, yeah. Yes, sir. Yes, sir. राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बजरंगबली हनुमान की तंजीर जय, जी, राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की। हाँ बोलिए पांडे जी। वो आपने जो गाने सुनाए ना, वो कुछ डरने और वो मरने वाला जो है, मैं 2 लाइन आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ इसके पहले कि आप चूज जरूर करें। जरूर जरूर। जहर सी लग रही थी जो हाँ हाँ, जिंदगी, घूंट जहर सी घूंट लग कर रही थी जो पीने लगा। जिंदगी। जहर सी लग रही थी जिंदगी जो घूंट घूंट अब पीने लगा हूं। क्या बात है। मरता हूं इस कदर उस पे, मरता हूं इस कदर उस पे कि अब जीने लगा हूं। वाह वाह। मरता हूं इस कदर उस पे कि जीने लगा हूं। जीने लगा यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। यही या आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। यही जब दोनों साथ में हो जाते हैं तभी देन दैट इज द मैजिकल स्पेस। क्या यस बात। ब्यूटीफुल वंडरफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है। मिलते रहेंगे, मिलते रहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय नेक्स्ट थर्सडे We should plan a एट trip 9। for Lonavala. We have holidays now, sir. I couldn't make it for Rishikesh. I think if we हाँ can make it ऋषिकेश for वॉज टू Lonavala. फार। हाँ चलो कहीं कुछ पास आस पास में ही कुछ कर लेते हैं प्लान। Yes, sir. यस Yes. डेफिनेटली। ओके ग्रेट। थैंक Thank यू you, sir. थैंक यू Thank थैंक you, यू sir. थैंक यू। Thank बाय। you. Thank you. Thank you.